کبھی انسان ماں کو کہہ دینا دو چار جملے اس طرح کے کہ ماں کو محسوس ہو کہ آج اس نے میری ساتھ عزت والا رویہ نہیں رکھا، تو اماں بیچاری کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کمائی لٹ گئی ہے ساری، تکلیف میں آ جاتی ہے۔ یعنی پیسے دینا، خرچہ دینا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ایک دن بھی توہین کر دیں تو وہ جملہ بھولتا ہی نہیں۔ جو توہین ہوتی ہے نا، بے ادبی، یہ معاشرے میں بے سکونی پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بیوی کئی دفعہ خامن سے کہتی ہے کہ تو خرچہ تھوڑا دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا، وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے کہ تو روٹی نہ بھی پکائے گی تو ہوٹل سے کھا لوں گا، اور تو کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو دھوبی سے دھلوا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر، میرے باپ کا احترام کر۔ یعنی بے ادبی بے سکونی پیدا، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ بے ادبی بے سکونی پیدا کرتی، اور ادب کیا کرتا ہے؟ اماں بیچاری رات کو انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ وہ بیٹی نے نا، بیٹی بیاہ دی تھی، اس نے کوئی 20-25 ہزار روپیہ مانگ لیا تھا۔ اماں کو اب سمجھ تھی کہ بیٹا میرا کمزور ہے، کماتا ہے پر اس کے اپنے بھی بچے ہیں، تو اماں چاہتی بھی ہے بیٹی کی مدد کرنا، پر وہ کیسے کہے بیٹے کو، کمالدار بندہ تو ہے نہیں۔ سوچتی رہی، کوشش کرتی رہی، بیٹا رات کو گھر آیا تو اماں بڑی ترتیب سے، مرتب کر کے، سوچ سمجھ کے، جھجک کے، ناپ تول کے جملے بولنے لگی۔ اس نے کہا بیٹا دل تو میرا نہیں کرتا، تیری آمدن سے، تیرے اخراجات سے، تیری مشقت سے میں بڑی اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تیری بہن کو کچھ تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میرا دل نہیں کر رہا۔ اماں نے بات کی، بیٹا اٹھ کے قریب چلا گیا، اس نے جا کے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اس نے کہا ماں میری بات سن، مجھے نہ ڈر ڈر کے نہ کہا کر، مجھے حکم کیا کر۔ اور اماں یہ تو 20-25 ہزار کی بات ہے، جان مال حاضر ہے تیرے لیے۔ آپ یقین کر لیں کہ اماں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا۔ یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں، رات کو 2-3 نمبر ہی ٹانک دیں، ابا جی کے پیروں میں بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، نمبر ٹانکنے کے لیے ابا جی لے آؤ تھوڑا دبا دیں، تو ابا کہتے پتر میں کدوں حلوا رہا سا، تو تے تھکے آیا ہے، یا میرا پتر سو جا جا کے۔ وہ بڑا آپ نے 2 جملے کہے، لیکن سویرے نا آپ کا ابا سارے محلے میں جس چوک میں بیٹھے گا یہ بتائے گا کہ میرا پتر بڑا چنگا، میں نے کوٹ کے سوندا ہے۔ اب بات کو سمجھیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا بھی ادب کریں تو وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے PhD کر لی، آپ شیخ الفقہ ہو گئے، تو جس استاد سے آپ نے پرائمری میں پڑھا تھا، بے شک اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے، لیکن اگر کبھی وہ آپ کو سائیکل پہ جاتا مل گیا اور آپ بہت بڑی پجاروں میں تھے اور آپ نے پجاروں کو بریک لگائی اور نیچے اتر کے استاد جی کو سلام کیا، تو پھر وہ استاد سائیکل پہ نہیں ہے، پھر تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے عزت والی سواری پہ سوار ہو گیا۔ عزت کرنا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں، عزت کریں، وقار پیدا کریں۔ ہمارے ہاں نا میڈیا نے اور ہم نے خود بھی توہین پرموٹ کرنی شروع کر دی۔ یعنی رات کو ٹی وی پر جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے نقص بیان کیے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی شکایت ہے تو آپ اسے ضرور منظر عام پہ لائیں، لیکن آپ نے تو بازار گرم کر دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے بھی ایک دوسرے کے خلاف پورا پلان کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے پوچھ لیں، پولیس والے اچھے ہوتے ہیں، پٹواری اچھے ہوتے ہیں، سیاستدان اچھے ہوتے ہیں، چلیں عوام کے بیچ بیٹھ کے تنہائی میں پوچھنا، مولوی ٹھیک ہوتے ہیں، پوچھ لیں آپ پیران عظام کے بارے میں۔ ہم نے گھٹن پیدا کی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے، کیوں؟ طبیعت نہیں پیار کرنے کی، طبیعت نہیں درگزر کرنے کی، عزت دینے کا مزاج نہیں، توہین کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ سارے برے ہیں، جنگل کا قانون ہے، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا۔ اس سے نا تیزی کے ساتھ توہین پرموٹ ہوئی ہے۔ آج جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا، وہ گپ شپ نہیں، وہ اصل میں چگلیوں کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں 4-5 لوگ اور کہیں کہ آج 2-4 گپ شپ کرنی ہے، تو گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ سیاستدان برے ہو گئے، تاجر برے ہو گئے، فلانا، تو بے ادبی پرموٹ ہوئی۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ سارا ہی ادب والا ہے، وہ سارا دین ہی ادب والا ہے۔ اور ادب کو آپ کی عبادت کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی تسبیح کا، آپ کی تلاوت کا، آپ کے صدقے کا، آپ کی خیرات کا ادب محافظ ہے، ادب حفاظت کرتا ہے۔ بولے نہیں جی بڑی مہربانی، بولے نہیں۔ بے ادبی ضائع کر دیتی ہے اعمال کو۔ اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نا کوشش کرنی ہے کہ غیر ارادی بے ادبی بھی نہ ہو۔ یعنی
इरादा तन तो करना बहुत बड़ा जुर्म है ना, गैर इरादी भी बेअदबी हुक्म दिया गया हमें। मैं कुरान और सुन्नत का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत साबित बिन कैस बिन शुमास अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिकले समात का अर्जा था, यानी थोड़ा ऊंचा सुनते थे। जो आदमी थोड़ा ऊंचा सुनता है वो मिजाजन ऊंचा बोलता है, उसका ख्याल होता है चूंकि खुद नहीं उसे सुन रहा तो समझता है शायद दूसरे भी ऊंचा ही सुनते होंगे। तो ये जब हुजूर की बारगाह में आते और कुछ सवाल करते तो थोड़ा ऊंचा बोलते। आप मेरी बात को समझें, आपने उलमा से ये बात सुनी है लेकिन इसकी जरा गहराई में, यानी कुछ भी नहीं वो करते, वो अदब से बैठे हैं, उन्होंने कोई गलत जुमला नहीं इस्तेमाल किया। फिर गौर करें क्या अर्ज कर रहा हूँ। एक हमारे यहाँ तो लोग बड़े बड़े सख्त जुमले कह देते हैं ना, और तेजी में बोलते हैं तो अल्लाह जाने क्या कुछ कह जाते हैं। कोई सख्त जुमला नहीं, कोई बेअदबी वाली बात नहीं, कोई तौहीन आमेज रवैया नहीं, कोई बात करते हुए चेहरे के ऊपर किसी किस्म की उन्होंने जो है वो सख्ती नहीं, तुरशरुई नहीं, सिर्फ क्या है कि बोलते हैं तो थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, थोड़ा ऊंचा बोलते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, फरमाया तुमने अपनी आवाज़ें मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची नहीं करनी। वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बादिकुम लिबाद, और तुमने हुजूर के सामने इस तरह चिल्ला के बात नहीं करनी जिस तरह आपस में करते हो। तो या अल्लाह अगर हो गई तो सवाल पैदा होता है ना, मफ़हूम मुखालिफ भी लोग मुराद लेते हैं। अगर हो गई तो फरमाया तहबत आमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल जाया कर दिए जाएंगे। बात को समझे, सारे अमाल वान तुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यानी तुमने अगर हर साल हज किया है, ज़कातें दी हैं, खैरातें की हैं, उसने अखलाक मौजूद है, हुकूकुल इबाद किए, ये सारा कुछ है, लेकिन अगर तुमने अदब नहीं ना किया तो समझ लें कि वो जो अमाल की हिफाजत करने वाला दरवाज़ा था वो तुमने खोल दिया है। तुम्हारे अमाल अब उसके रास्ते निकल जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। और अगर तुम कर लो अदब, अगर तुम कर लो अदब तो फिर माना यह है कि तुमने अपने अमाल भी किए हैं और तुमने अदब करके उनके गिर्द बाड़ लगा लिया, ये महफूज भी हो गए। अदब महफूज करेगा चीज़ों को। मुअद्दब रहें, ताज़ीम के साथ रहें। आपके जुमले, आपके लफ्ज़, आपका उठना बैठना, आपका लोगों के बारे में बात करना, उसके अंदर कभी कोई ऐसा पहलू ना हो, कभी कमज़ोर बात ना करें, कभी तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार। आप यकीन करें, हम लोग, हमें ऐसा महसूस होता है हमारा मुखलस ही कोई नहीं, हमें यूं लगता है कि कोई दोस्त ही कोई नहीं। क्यों? ज़हन बना लिया है लोगों की तौहीन कर कर के, नज़रिया बना लिया है, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है। आप थोड़ा थोड़ा लोगों से प्यार शुरू करें, आप थोड़ी मोहब्बत शुरू करें। और आप, एक तो ये कि हमारे यहाँ ये ज़ौक़ है कि मेरी सारी इज्जत करें, ये ज़हन आप छोड़ दें। ना तो इज्जत मांग के लेनी चाहिए। यहाँ कोई दोस्त बातें करते हैं जी, मैंने पहले भी गुजारिश की, एक दफ़ा ज़रा गुजारिश नहीं, डांटना नहीं जी, ये तो हुजूर के मिलाद की जिक्र की, मैं बस प्यार से ज़रा, यानी यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ गई है, अब यहाँ से वहाँ आ रही है, वो है रिक्वेस्ट ही, ठीक है ना जी। अल्लाह आपको जज़ा दे। दोस्त, आप समझ लें कि जब आप लोग देखें ना, इज्जत ना तो मांग के ली जाती है ना छीन के ली जाती है। इज्जत का तो माना होता है कि बंदा काम इस तरह के करे कि इज्जत करने को दिल करे। तो ना आप इज्जत तलब करें ना इज्जत छीने। इज्जत छीनते भी है ना लोग, बताओ किस तरह। वो ना छोटी वाली साली की शादी है तो बड़े साला साहब, दामाद साहब आ गए, तो इस बात पे नाराज़ हो गए कि मुझे ट्योटे पे बिठा दिया, कार में क्यों नहीं बिठाया। हंसने के लिए नहीं बात कर रहा, हकीकत बयान कर रहा। अब वो अपनी अहलिया से कह रहे हैं बच्चे उठा चलेंगे तो हमारी इज्जत ही नहीं करते। अब वो बेचारा बूढ़ा सुसन मिन्नतें कर, कहता है पुत्र अगू नहीं करता, आ जा तेरी मेहरबानी। रो रहा है, घर में मुसीबत खड़ी हो गई। और ये अब उसको उन्होंने गाड़ी में नहीं बिठाया, फ्रंट सीट पे बिठाया, लेकिन ये इज्जत आपने छीन के ली है या आपने एहतजाज करके ली है, इसका कोई मज़ा। पता है इज्जत किसकी होती है? बताऊं, दो दामाद हो ना, तो एक उनमें रट्टा डालने वाला, एक शरीफ आदमी, तो पता ससुर क्या कहता है? कहता है इसका ध्यान रखना, ये बड़ा अड़ जाता है, इसकी खैर है, ये बेचारा बड़ा अच्छा है, ये इज्जत वाला है, ये वकार वाला। ना छीन के लें ना आप मांग के लें, काम इस तरह के करें। हाँ, जो ज़रूरी है वो क्या है? वो ये है कि एक दूसरे की इज्जत करें, दूसरों को थोड़ी जगह देनी शुरू करें। दाता गंज बख्श अली अजवेरी
रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब के अंदर हदीस लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा लोगों से प्यार बढ़ जाए, लोगों का तुमसे प्यार, बहुत बड़ा जुमला है अगर आप गौर करें तो, अगर तुम चाहते हो कि लोगों से तुम्हारा प्यार बढ़े तो हुजूर फरमाते हैं फिर 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? तो हुजूर फरमाने लगे, सबसे पहले ये करो कि सलाम लेने में पहल किया करो। ये ना कहो कि तू मैंने सलूट ही नहीं कीता और तू किसी ना, भाई ये कहने की क्या जरूरत है, आप पहल करें। और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब कोई महफिल में आए तो उसके लिए जगह कुशादा करो, चेहरे पे तलखी ला के ना कहो कि तू किधर आ गया, थोड़ी जगह दो, को यहाँ आ जा यार, यहाँ बैठ जा, मोहब्बत बढ़ेगी। और तीसरा हुजूर फरमाने लगे, अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे प्यार करें तो उन्हें उस नाम से पुकारा करो जो उन्हें अच्छा लगता है, अच्छे अल्फाज के साथ। हमने तो लोगों के नाम डाल दिए हैं, अलकाबात बिगाड़ दिए। तो इज्जत का माहौल। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर के सहाबी हैं और बहुत सारी हदीसों के हाफिज हैं। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साथ भाई हैं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआ दी थी कि अल्लाह इसे इल्म अता फरमा। बड़े फ़कीह किस्म के और उम्मत के पहले मुफस्सिर हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अगरचे ख़ानदान रसूल से ताल्लुक़ रखते थे, हुजूर के सगे चचा के बेटे, इसके बावजूद अपने उस्ताद के घर इल्म सीखने जाते और कहते मैं जितनी दफ़ा हजरत ज़ैद बिन साबित के घर गया हूँ ना उस्ताद के पास, उनके पास हदीसें थी हुजूर की, तो मैं सुनने गया हूँ तो मैंने एक दफ़ा भी उस्ताद के दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। हुजूर आप क्या करते थे? इसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते मैं दरवाजे पे बैठा रहता था, बैठा रहता था, बैठा रहता था, कई दफ़ा थक जाता था तो फिर मैं लेट जाता था और उनके दरवाज़ा सहरा में खुलता था। कई दफ़ा ठंडी हवाएं मदीने को चूम के जब गुजरती थी तो रेत भी उड़ के मेरे बालों में पड़ जाती थी, पर मैं लेटा रहता था, खटखटाता नहीं था। क्यों? इसलिए कि मैं आया हूँ साइल बन के, मैं आया हूँ शागिर्द बन के, मुझे तकलीफ नहीं देनी। वो जब मर्जी से बाहर आएंगे तो उन्हें कहूँगा मुझे मदीने वाले की हदीसें सुना दे। वो मर्जी से आते तो मैं सीखता। एक दफ़ा आला हज़रत ने लिखा, एक दफ़ा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पे जा रहे थे, आगे से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आ गए। तो वो रूटीन में जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। बाज़ लोग कहते हैं ना जी क्या ज़रूरत है जूते उठाने की, क्या ज़रूरत है फलान, वो रूटीन में जा रहे हैं और घोड़े पे बैठे हैं, लगाम उन्होंने थामी, लेकिन सामने से शागिर्द आ गया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आ गए, दौड़ के जाके उस्ताद जी के घोड़े की लगाम पकड़ ली। नहीं समझ आई आपकी बात? यानी एक तो ये ना कि उस्ताद को ज़रूरत है तो उस्ताद ने आवाज़ दी तो खिदमत करी, एक ये कि खुद ब खुद जाहिर किया ये मेरे उस्ताद है, यानी एलानिया बताया कि ये मेरे, दौड़ के जाके घोड़े की लगाम थाम ली। हजरत ज़ैद बिन साबित कहने लगे ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेहरबानी करें, आप हुजूर के चचा के साहिबजादे हैं, आप बड़ी एजाज वाले ख़ानदान से ताल्लुक़। तो हजरत ज़ैद बिन साबित कहने लगे हमें सिखाया गया है कि हमने उलमा की इज्जत करनी है। जब उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहने लगे हमने सिखाया गया है कि हमने उलमा की इज्जत करनी है, जब ये कहा तो जनाब ज़ैद बिन साबित घोड़े से नीचे उतरे और जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास का हाथ पकड़ के चूम लिया। वो कहने लगे उस्ताद जी ये क्या है? फरमाने लगे हमें भी सिखाया गया है कि ख़ानदान रसूल की इज्जत करनी है, ये हमें भी सिखाया गया। आप एक दूसरे को एहतराम देंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बड़े रहेंगे, इससे कोई कमज़ोरी वाक़या नहीं होगी। आप इकराम करना शुरू करें, मुस्बत ज़हन बनाएं, लोगों की अच्छाइयाँ उनका जिक्र करें और अदब करें। अदब आपको बड़ा करेगा, अदब आपको जानदार कर देगा। आप यकीन करें, मैं कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक महफिल में हाजिर हुआ तो वहाँ बहुत सारे लोग मिले। एक क्लीन शेव साहब थे, बिल्कुल धावा तो मेरा ही है ना कि पगड़ी दाढ़ी वाला मैं हूँ तो कब्ज़ा मेरा ही है, मिंबर पे भी इश्क पे भी, मैं देता तो नहीं किसी को थोड़ा सा भी। तो क्लीन शेव आदमी मिला तो उसका लफ्ज़ लहजा बड़ा अदब वाला, बड़ा मुअद्दब। मैंने कहा नहीं और ना मैं इस काबिल हूँ, खुद ही वो मेरे से आगे नहीं चले। और उन्होंने कहा जी, मैंने कहा क्या शेड्यूल है? कहने लगे शेड्यूल तो आप क्या हुक्म जो करेंगे वो हो जाएगा, हम तो हमारा क्या जरूरत है अल्लाह के किसी बंदे से ऐसा। तो मुझे अच्छा लगा जो उस बंदे का अंदाज था। मैंने उनसे सारे मजमे में से उनसे मैंने पूछा आप किसके मुरीद हैं? तो बाकी लोगों ने, उन्होंने मुझे बताया मैं फलां बुजुर्ग से
मेरा आना जाना है। तो बाकी लोग मुझसे कहने लगे कि हमें क्यों नहीं पूछा। तो मैंने कहा आप बात को समझे नहीं, जहाँ से खुशबू आएगी उसी को पूछा जाएगा ना कि तू किस दरख्त का फल है। तो यहाँ से खुशबू आई है, समझ आई है कि नहीं, किसी के निगाह ने ना इसे तराशा है, ये किसी के यहाँ बैठता है, किसी के यहाँ उठता है, यानी इसकी आंखें इसलिए भरी हुई हैं कि इसने कहीं बैठ के कोई 2-4 जाम पिए हैं, इसने कहीं बैठ के ना कुछ सीखा है, कुछ अल्लाह अल्लाह तो वो नजर आ रहा है। मतलब ये कि आपको वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि पूरी देग नहीं चखी जाती, 2 दाने चख के पता चल जाता है बाकी देग किस तरह की है। और मेरे अजीज समझ लो, अच्छे तरीके से अदब करें। सहाबा किराम अली मुरिदवान ने जो हुजूर से बड़ा फैज ले लिया ना, बड़ा फैज लिया, तो वो उन्होंने अदब करके लिया, उन्होंने हुजूर का अदब किया। आप यकीन करें, बड़े बड़े जो तगड़े लोग थे जब हुजूर की बारगाह में आते थे वो सिमट जाते थे। हमारे यहाँ लोग कहते हैं फलाने बुजुर्ग से मेरा बड़ा दोस्ताना है जी। अच्छा जी, क्या दोस्ताना है आपका? कहते मैं जो मर्जी, मेरे पास नंबर है, अभी फोन कर लूंगा। ये कोई कमाल तो नहीं ना भाई। अगर किसी वक्त को बंदा मेहरबानी कर दे तो ये तो उसकी मेहरबानी है, ये उसकी मेहरबानी है। ये आप क्यों बीच में अपने आप को इतना स्मार्ट कर रहे हैं? मौला अली शेर खुदा, अब मेरी बात पे तवज्जो करें जी, अल्लाह जज़ा दे। मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ना हजरत मौला अली के नाज उठाया करते थे। यानी हजरत अली घर से नाराज होकर चले गए बचपन में, तो आपकी वालदा इंतजार कर रही थी। यहाँ एक रवायत में है कि सैयदा फातिमा शादी हो चुकी थी, वो इंतजार कर रही कि हुजूर आएंगे तो कहेंगे कि अली नाराज हो गए, मना के लाइए। तो यानी नबी पाक खुद तशरीफ ले गए। हजरत मौला अली शेर खुदा खाना काबा के पास जमीन पर लेटे हुए, नाराज हैं, तो फरमाया कुम या अबा तुराब, उठो मिट्टी वाले, यानी सारे कपड़ों को मिट्टी लग गई। हजरत मौला अली से को पूछता था नाम क्या, तो फरमाते थे वही नाम है जो मदीने वाले ने रख दिया है। अबू तुराब कुनियत उन्होंने पसंद कर ली। हुजूर नाज उठाते, हुजूर बार बार फरमाते जिसका मैं मौला उसके अली भी। हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा दुनिया में भी भाई है, मेरा आखिरत में भी भाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बारे में इरशाद फरमाया कि ये मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जनाब हारून अलैहिस्सलाम थे। बड़ी बातें हुजूर ने उनके लिए की, एक नहीं की। फजाइल में शायद सबसे ज्यादा हदीसें मौला अली के लिए आई हो, लेकिन हजरत अली ने एक दफा भी नहीं कहा कि जैसे मैं कहूँ हुजूर वैसे ही कर ले। आप मेरी बात को समझें। बुजुर्ग मिसालें देते हैं, मैं नहीं देता, वो देते हैं। तो किसी बुजुर्ग का नाम लेके तो कोई मिसाल दे लेनी चाहिए ना। आप नाराज तो नहीं? अल्लाह आपको हाँ ना थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा ही दें ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं पीर भारत शाह साहब का एक फिक्र है, मेरा नहीं उनका है, तो उन्होंने समझाने के लिए मिसाल दिया है, वरना मैं इन लोगों के नाम अक्सर नहीं लेता। पीर साहब कहते हैं कि हीर हस बोले तो ओदी मेहरबानी, नहीं तो रांझे ते लाड ही लडावने ने। अगर वो कभी मुस्कुरा दे तो ये तो उसकी मेहरबानी है ना। यानी अगर महबूब कभी करम फरमाए तो उसकी, अब इसका मतलब ये है कि बंदा चौड़ा हो जाए। मेरी बड़ी मानते हैं, ये क्या कमाल हुआ, ये कोई बात है। कई संगी आते हैं ना जी, तो संगियों को लोग थोड़ा सा ख़राब भी करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, तो क्योंकि हमारा तरीक़त का थोड़ा सिलसिला है तो टाइम कुछ लेना था, उन्होंने मुश्किल हो जाती है मेरे लिए बड़ी बड़ी, एक एक दिन में कई कई जगह, और अब तो सफ़र ने बीमार कर दिया। तो आए कहने लगे हज़रत साहब वो टाइम फलानी जगह दे दें। मैंने कहा यार ये डायरी है, बड़ी मुश्किल है, वक्त होता तो ज़रूर हाजिर करते। तो मुझे कहने लगे कि मैनू बंदे कहने तेरे पीर तेरी इन्नी गल भी नहीं मनते। मैं क्या उन्होंने आखी पीरां नूं मनाई दी नहीं, पीरां दी ते मनी दी है, तेनू उन्हें गलत मशवरा दिता है। ये क्या बात हुई कि पीर साहब मेरी इतनी बात भी नहीं मानते। पीरां ये ना हमें मैं जो बात समझाने लगा उस पर आपने गौर करना है। यानी हुजूर ने खुल के प्यार किया मौला अली से, यानी हद कर दी, फरमाया मैं उसी का मौला हूं जिसके अली मौला है, खत्म हो गई बात। लेकिन हजरत अली क्या फरमाते हैं ये आपको मिशकात में हदीस मिलेगी और आप हैरान हो जाएंगे। यानी बचपन में साथ हैं, पहले हुजूर इनके घर रहते थे, फिर ये महबूब की बारगाह में रहने लगे और हुजूर ने लाड लडाए, प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते मुझे अगर हुजूर से कोई सवाल पूछना होता, इनका अदब नहीं टूटा कि मैं फ्रैंक हो गया हूं, मैं जो मर्जी करूं, ना ना। फरमाते मुझे अगर हुजूर से कोई सवाल पूछना होता
घंटों नहीं, दिनों नहीं, फरमाते मैं हफ्तों इंतजार करता। जुर्रत नहीं होती थी सोने से पूछ लो। मेरा दिल करता था कोई और ही आए और जो मैंने पूछना है वो पूछ ले, साथ मेरा भी काम बन जाए। जुर्रत नहीं, मैं किस तरह करके सवाल पूछूं, मेरी तबीयत नहीं मानती। हुजूर की बारगाह में अर्ज करूं, ना 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 ना, पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और हजरत सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने तो बाबे जिब्रील के बिल्कुल पास हजरत जिब्रील को खड़े देखा है और वो वहाँ बातें कर रहे थे। तो आलम तखय्युल की बात करते हैं, कहते हैं बातें भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, ऊंचा नहीं। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। आपने देखा है ना बाबे बकी के साथ बाबे जिब्रील है, जब हाजिरी दे के निकलते हैं, कहते वहां खड़े थे हजरत जिब्रील और आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, अपने तसव्वुर में अल्लाह वाले बात करते हैं। कहते बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। यानी कहते मैंने उनसे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहने लगे दस्तक देने आया हूं। तो मैंने कहा दें फिर, तो जिब्रील कहने लगे दे दी है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो वो कहने लगे मैंने पलकों से दी है, हुजूर का दरवाजा तो मैंने हाथों से नहीं दी। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। और लोगों हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। हमारा दर्द समझो, हमारी कैफियत समझो, हमारे इश्क का माहौल समझो। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, क्योंकि जरा आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया।